डिजीज या सीलियक स्पर दोनों एक ही चीज है। इसको आप सीलियक डिजीज भी बोल सकते हैं। ये है क्या? सीलियक स्पर या सीलियक डिजीज है क्या? ये एक ग्लूटेन सेंसिटिव इंट्रोपैथी है, जिसको हम क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। उससे क्या होता है? दैट रिजल्ट्स इन एन inability to tolerate gluten। ग्लिएडीन बोलिए, द अल्कोहल soluble fraction of ग्लूटेन। ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि किस चीज में पाया जाता है? वीट, राई और बार्ली। मतलब हमारे भोजन में जो वीट है, राई है, बार्ली है, इसमें जो एक प्रोटीन है वो प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन को ग्लूटेन बोलते हैं। और उसमें ग्लिएडीन है जो अल्कोहल सोल्यूबल फ्रैक्शन है ग्लूटेन का, वो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। वो डाइजेशन में उसके दिक्कत होता है, उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। इस तरह के डिजीज को हम सेलियक डिजीज बोलते हैं। दिस इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये हम इसको मान के चलेंगे। अब हम ये जानेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या है, मेडिकल डिफिनीशन क्या है। एन इम्यून डिसऑर्डर whereby the small intestine is injured when exposed to gluten, a protein found in wheat and related grains। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन किसी वजह से इंजर्ड हो जाए और वो जब ग्लूटेन हमारे शरीर में जाए तो उसको वो डाइजेस्ट न कर पाए। सीलियक स्पर causes impaired absorption and digestion of nutrients through the small intestine। ये हमारा मेडिकल डिफिनीशन है। सिम्टम क्या है? 9 most important symptom of this celiac disease are diarrhea, bloating is another common symptom that people with celiac disease experience, gas, fatigue, weight loss, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, ये सब इसके सिम्टम हैं। और इस डिजीज को ट्रिगर कौन सा चीज करता है, क्यों ये बढ़ जाता है? इट इज ए सीरियस जेनेटिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ट्रिगर्ड बाय कंज्यूमिंग ए प्रोटीन कॉल्ड ग्लूटेन विच इज फाउंड इन wheat, barley and rye। When a person with celiac eats gluten, the protein interferes with the absorption of nutrients from food by damaging a part of small intestine called villi। ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल है। इसको आप नोट डाउन कीजिए और इसके नोट्स को आप लिखिए, क्योंकि ये सीलियक स्पर या सीलियक डिजीज पर नोट्स आता है बनाने के लिए। अब अगला सवाल ये उठता है, व्हाट हैपेंस इफ यू कीप ईटिंग ग्लूटेन विथ सेलियक डिजीज। आप ग्लूटेन लेते रहिएगा तो इस डिजीज में क्या होगा?
Celiac disease is a digestive disorder triggered by gluten, a protein found in food that contains wheat, barley, or rye. When people who have celiac disease eat gluten, the result is a reaction in their small intestine that can lead to symptoms such as diarrhea, abdominal pain, bloating, and weight loss. Just some of the more than 200 celiac disease symptoms include abdominal bloating and pain, chronic diarrhea or constipation, vomiting, weight loss, iron deficiency anemia, fatigue, joint pain, tingling or numbness in the legs, sores inside the mouth, tooth discoloration, unexplained infertility, and anxiety. In the vast majority of cases, celiac disease is not fatal in the way we normally think of fatal disease. It won't progress and ultimately kill you. 2 blood tests can help diagnose it. Serology testing looks for antibodies in your blood. Elevated levels of certain antibody proteins indicate an immune reaction to gluten. ये serology testing looks for antibodies in your blood. तो इसको आप ध्यान से इसको भी लिखिए. फिर लिखिए दूसरा टेस्ट, जेनेटिक टेस्टिंग फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA-DQ2 and HLA-DQ8 can be used to rule out celiac disease. ये 2 तरह का टेस्ट है. इससे कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? Celiac disease is an autoimmune condition that causes body's immune system to respond to the protein gluten by damaging the lining of the small intestine. Small intestine के lining को damage करता है. Gluten is found in wheat, rye, barley, and a few other grains. Avoiding gluten allows the small intestine to heal. Celiac disease can develop and be diagnosed at any age. It may develop after weaning onto cereals that contain gluten, in old age or any time in between. इसलिए सेलिक डिजीज से डरने की ज़रूरत नहीं है. ये एक तरह का ऐसा क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा शरीर जो है वो ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन पाया जाता है वीट में, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाता है उसके बारे में हमने आपको नोट्स बता दिया. आप इसको गौर से देखिए, पढ़िए, लिखिए और उसके बाद इसको समझने का कोशिश कीजिए कि ऐसा होता क्यों है. ग्लूटेन रेसिस्टेंट जो है वो ग्लूटेन हमारे शरीर में डाइजेस्ट क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग को ख़त्म कर देता है. इसका अलग दूसरा नाम क्या है? सेलिक स्पर है, नॉन ट्रॉपिकल स्पर है, इंडेमिक स्पर है, ग्लूटेन इंट्रोपैथी है. ये सब इसका नाम है. सिम्टम्स हमने बताया आपको जस्ट. नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, माल एब्जॉर्प्शन, वेट लॉस, ये सब इसका सिम्टम है. कॉम्प्लिकेशन क्या है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इनफर्टिलिटी, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, अदर ऑटो इम्यून डिजीजेस. किस एज में होता है? एनी एज. कब तक ये बीमारी रहेगा? लाइफ लॉन्ग. कारण क्या है इस बीमारी का? रिएक्शन टू ग्लूटेन. डायग्नोसिस मेथड क्या अभी बताए हम? फैमिली हिस्ट्री, ब्लड एंटीबॉडी टेस्ट, इंटेस्टाइनल बायोप्सीज, जेनेटिक टेस्टिंग, रिस्पॉन्स टू ग्लूटेन विड्रॉल, ये सब इसका टेस्ट है. ट्रीटमेंट क्या है? ग्लूटेन फ्री डाइट. डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज.
जिसको IBS भी बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो भी है, इंटेस्टाइन पैरासाइट्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आपको हम एक बता दिए, आपको आइडिया दे दिए कि ये डिजीज़ है क्या, और ये मोर देन सफिशिएंट है आपको शॉर्ट नोट्स के लिए जो आप एग्ज़ाम में लिखिएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल जो एग्ज़ाम है उसके लिए टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेलिक स्पर और सेलिक डिजीज़। इसमें हमने लिखा बहुत कम है, मैक्सिमम हमने बोल के समझाया है, आप उसको नोट्स बनाइए। और बेसिकली इसके बारे में आप ये अच्छी तरह समझ लें कि ये एक तरह का ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन है जो वीट, बार्ली या राई में पाया जाता है, उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाता है, उसको पचा नहीं पाता है। उसके चलते क्या क्या होगा वो मैंने बता दिया, ऐसा क्यों होता है वो बता दिया, और ये बीमारी लाइफ लॉन्ग है। इसका एक ही उपाय है कि आप अपने आप को ग्लूटेन फ्री डाइट में ढाल लें, ऐसा डाइट लें जिसमें ग्लूटेन ना पाया जाता हो। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।